हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी, दैट इज़ कॉल्ड एज कायरल कार्बन। सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। व्हाट इज़ मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज़ द phenomena in which when the substance which have ability to rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise, that substance shows anti-clockwise. The substance which can rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise, it is called as optically active substance. Optically active substance. But what is the necessary condition to show the optical activity? So what is the condition to show the optical activity? So first condition is that the carbon should be attached with four different atoms or groups. Four different atoms or groups means the carbon which is attached with four different atoms I, Cl, Br, H. देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये चार ही ग्रुप, ये चार ही एटम डिफरेंट है, इसलिए कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं। दिस कार्बन आल्सो नोन एज कायरल कार्बन। और असिमेट्रिक मीन्स इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज asymmetric carbon. The carbon which cannot possess any type of symmetry, it is called as asymmetric carbon. It is also called as stereogenic center. Stereogenic center, इसको stereogenic center भी बोलते हैं और it is also called as stereo center. तो ये सिंपल है। The carbon which is attached with four different atom or group which cannot possess a symmetry, either plane of symmetry or axis, center of symmetry or axis of symmetry, that carbon it is called as chiral carbon or asymmetric carbon, stereogenic center or stereo center. So the first condition to show the optical activity is that the carbon should possess chirality. Second one, it should show non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other. तो ये सेकंड कंडीशन है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशियोमेरिज्म. इट शुड शो इनैंशियोमेरिज्म. इनैंशियोमेरिज्म. तो पहली कंडीशन है द कार्बन विच इज़ अटैच विथ फोर डिफरेंट ग्रुप, और दूसरी कंडीशन है इट शुड शो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इट शुड शो इनैंशियोमेरिज्म. सो इनैंशियोमेरिज्म शॉर्टकट में, तो सबसे पहले कंडीशन थी द कार्बन एटम विच इज अटैच विथ फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप. देखो ये कार्बन एटम, इसको कायरल कार्बन बोल सकते हैं बिकॉज दिस कार्बन एटम विच इज़ अटैच विथ फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप. यहाँ पे ब्रोमीन, अमोनिया, NH2, क्लोरीन, हाइड्रोजन. सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन, NH2, Cl भी आ. सो देखो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल because it is also optically active. When this molecule placed in front of mirror, it shows its mirror image like this. देखो ये मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल है, दोनों ही सेम है बट बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो दूसरी कंडीशन है इट शुड शो नॉन सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज मीन्स एक के ऊपर एक, सेम एटम के ऊपर सेम एटम आना. जैसे देखो इस मॉलिक्यूल को पकड़ो और यहाँ पे रखो, ब्रोमीन की जगह NH2 आया, क्लोरीन की जगह क्लोरीन, H की जगह, मगर ऑल एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल should not be superimposed on each other, means both molecule are non super
imposable non superimposable mirror images of each other. Hence, both molecules or both isomer, it is called as enantiomer. दोनों आइसोमर क्या है? enantiomer है. Suppose this molecule is D, so this molecule should be L. Means this molecule rotate clockwise, this molecule rotates anti-clockwise. Both are isomer of each other, and the isomer which are non-superimposable mirror images of each other, it is called as the isomer which is non-superimposable mirror images of each other, it is called as enantiomers. So first condition is that the carbon atom which is attached with 4 different atom or group. Second condition is that the molecule should not possess any type of symmetry, means it should show non-superimposable mirror images, and this is also called as enantiomerism. This is the necessary condition to show the optical activity. इसके बाद है डेस्ट्रो एंड लियो आइसोमर. द आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज डेस्ट्रो आइसोमर और डी फॉर्म. डी फॉर्म. लियो आइसोमर, it is also called a L form. Leo isomer, it is also called as L form. It rotate plane polarized light anti-clockwise or counterclockwise in direction. Counterclockwise in direction, it is called as L form. Both are isomer of each other. Means D and L isomer both are enantiomer of each other. D and L form both are enantiomer of each other. So the isomer which rotate plane polarized light are opposite in direction, it is called as optical isomer. So अभी देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल में कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर है. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर, हाउ मेनी स्टेरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. ये पहला मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल में आप देखो, ये जो सेंटर पे दिख रहा है ये है कार्बन. ये कार्बन को यहाँ पे NH2 अटैच है, यहाँ पे Br अटैच है, यहाँ पे आयोडीन अटैच है, यहाँ पे CH3. मीन्स दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड एज स्टेरियोजेनिक सेंटर. यहाँ पे एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है, बाकी तो कहीं नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल में एक स्टेरियोजेनिक सेंटर है. ये मॉलिक्यूल में देखो, ये कार्बन तो सेम एटम अटैच है, तो ये कायरल हो नहीं सकता. सेकंड एटम, दिस इज कार्बन, दिस अटैच विथ हाइड्रोजन COOH, OH और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल. सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, Br है, NH2 और ये डिफरेंट है. मीन्स दिस कार्बन एटम ऑल्सो अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम एंड ग्रुप. मीन्स यहाँ पे भी स्टेरियोजेनिक सेंटर. मीन्स ये टोटल मॉलिक्यूल में एक और एक टोटल 2 स्टेरियोजेनिक सेंटर है. यहाँ पे देखो, ये कार्बन पे OH अटैच है, Cl अटैच है, कुछ नहीं यानी हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे अटैच है. मीन्स 1 2 3 डिफरेंट है और ये डिफरेंट है. मीन्स ये कार्बन स्टेरियोजेनिक सेंटर है. ये आयोडीन, यहाँ पे कुछ नहीं यानी हाइड्रोजन है, आयोडीन हाइड्रोजन, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे मिथिल है. मीन्स ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल सेंटर. इसके बाद ये मिथिल, ये इथिल हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं यानी हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन, ये मिथिल, ये इथिल, और ये मोट बड़ा ग्रुप यानी डिफरेंट. इस यहाँ पे भी कायरल सेंटर है. यहाँ पे देखो CH2 यानी यही नहीं हो सकता, यहाँ पे CH3 ये नहीं हो सकता. 1 2 3 यानी टोटल स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 3. तो ऐसे आप स्टेरियोजेनिक सेंटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखो ये मॉलिक्यूल में कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर है. देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं हो सकता. ये मॉलिक्यूल क्लोरीन एटम को अटैच है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे C, यहाँ पे CO यानी ये स्टेरियोजेनिक सेंटर. ये H, ये OH, ये OH डिफरेंट है. ये कार्बन को Cl अटैच है, ये कार्बन को Cl नहीं है, इसलिए ये दोनों ही कार्बन डिफरेंट है. तो ये कार्बन को 4 एटम डिफरेंट, 4 एटम और ग्रुप डिफरेंट है, ये भी स्टेरियोजेनिक सेंटर है. यहाँ पे CH2 आया, ये स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं हो सकता. यहाँ पे H, यहाँ पे Cl,
यहाँ पे CH2 मगर यहाँ पे COH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये भी स्टेरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ पे CH2 है, ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 टोटल स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? 3। तो ऐसे आप स्टेरियोजेनिक सेंटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर। सो ये जो पार्ट है अगले सेशन में लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर